And then we have seen the method of verifying data was they all are traditional method. The experimentation, the observation, then we saw traditional method, that the empirical, and the rule was remain the same. That time and again, these method will be tested, but they will be differ from person to person. That is the historian. If historian is having their own perspective to deal, to judge, to understand, or to make an aware कि this original is conducted by so and so, so it's differ. Then we have seen the ways of writing history, then how the historian needs to learn the script. We have to be the expert of the writing of the languages, using very authenticity of the documentation when they are preparing, when they are presenting. So there we have seen letter style, author style, manufacturing, types of paper, stamp duty. टाइप्स ऑफ पेपर स्टैम्प ड्यूटी डजंट मीन्स कि हम जो लोकल स्टैम्प ड्यूटी और टाइप पेपर का कर रहे हैं एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट द क्लासमेट it is not applicable that you understand only the classmate of example. It's about the types of paper means is it the paper belongs to this century or that century or which century, because paper quality से हमें पता चलता है कि पेपर कितना पुराना है. And we get to know that the ink is which कि वो ancient time की ink use की गई थी, whatever it is, or by any color, natural color. Then we have seen the method of various disciplines, that the archaeology we have seen, archival science, manuscriptology, epigraphy, linguistic, humanistic, and genealogy. This yesterday I have explained you in much detail. If you have any doubt regarding the last yesterday slides or any kind of question answer, you can freely ask to me by raising your hand. Then we see that the scientific method is an ongoing process, and for whatever have to be deal in this, we have to first start gathering information, and then we have to think analytically, then hypothesis, then we have to give critical exam, and then finally we get the result of it. Yesterday we also seen this. Then we learn what is historiography and we who are the historian. And again, the last sentence was concluded that the past events, the narrative is differ as per the historian with their critically examining. Then we saw modern historiography, the four ways of judging, which this slides will be now further continued by the your second part of the first chapter to the development of the West. That is the method is should be the scientific principle, should deal with a very scientific and relevant evidence होना चाहिए. We see anthropocentric कि कैसी है ये सब ह्यूमन डीड से नहीं चलेगा, हमें एक प्रॉपर you have to give a proper evidence to every reference. ऐसे नहीं है कि कोई ह्यूमन की बात सुन के ओरल which we know oral sources, जो हम लोग folk songs and oral songs बोलते हैं, as a history we also preserve this oral sources, but yet to know जब इसको अगर रिकॉर्ड किया जाता है that we say written or we say it's in kind of documentation, but if it is sung by the past people only, then this is not in history. This is not we deal with the oral sources. We just give a column to that source ki this also sources is belong to oral, but they are not having any evidence to show off. Then answers, if we find out the evidence में जो question answers हम पूछते हैं, it should have a reliable supportation कि वो reliable है कि नहीं, क्या वो evidence proof होता है. If yes, then the evidence is true. If no, then the documentation is false. Then we see history present a graph of mankind journey. So ये एक journey है by past events and everything deal. मैंने इसका example आपको हड़प्पा से भी deal की थी. Next. The word is literally originated from Greek, and the Herodotus was the one who has given the word the history. In his book, he has written many of the documentation. Now we are going to learn. Yesterday, whatever you have learned, उसको deal का करना है, उसे understand का करना है, उसे समझना का है, और उसे कैसे हम categorize करेंगे. Okay? So ये important है आप इस पूरे सीन में और ये पूरे पार्ट में दैट आपको हिस्टोग्राफी और हिस्टोरियन का पर्सपेक्टिव क्या जानना है. फॉर योर अंडरस्टैंड आई लेट यू नो पर्सपेक्टिव का मीनिंग सबको पता है. सो पर्सपेक्टिव आई टेल यू, पर्सपेक्टिव इज लाइक इफ आई मेरा जजमेंट. For example, if I want to buy an ice cream or if I want to buy
take an ice cream only. So it's my perspective, which type of thing I like to have as an, suitability for myself. So this is my perspective. If I say, okay, this kind of quality is not good, this kind of quality I don't like, it is deal with every individual. My is this, yours, I like Amul, someone may not like Amul. So it's my perspective to deal, it's my judgment. So here also, in the development of history on the west side, we have seen the European historiography has given a remarkable progress in the 8th century. Now these progress has been started. Now these progress has been started after 8th century. Why? This is given in your page number 3 also, that the development of the scientific perspective. 8th century remarkable progress को क्यों बोला जाता है? Before that 8th century क्या होता था? इससे पहले भी सारे चीजें डील हुई है, बट उनके डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर 8th सेंचुरी में जर्मन के गॉटन यूनिवर्सिटी में इसे डील नहीं किया गया. दे वर सेट लाइक फॉर डीलिंग दिस थिंग यू नीड अ वेरी साइंटिफिक मेथड. जैसे कि हम लोगों ने साइंटिफिक मेथड ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि उसके लिए हमको क्या क्या बेसिक नीड होती है. बट गॉटन यूनिवर्सिटी में जर्मन के 8th सेंचुरी के बाद से हर हिस्टोरियन अपना व्यूज, अपना तरीका हिस्ट्री लिखने का चेंज किया है, just because of a application that was applied on the method was to focus more on history and historiography. Evidence is evidence. For example, अगर आपको आपके घर से कुछ मिला तो वो एक एविडेंस है, प्रूफ. बट फॉर दैट एविडेंस हिस्टोग्राफी जो प्रेजेंट कर रहा है किसी और को रेफरेंस को, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. हमने लास्ट टू लास्ट एग्जाम्पल स्लाइड्स में भी देखे थे कि सबके व्यूज ऑन गोइंग साइंटिफिक कैसे होते थे, बट यहाँ पर हर हिस्टोरियन अपने तरीके से जो लिख रहे हैं वो चेंज है. Prior to the 8th century, all the European universities were interested only in discoveries revolving around divine phenomena. Divine means जो बातें चलती थी उन्हीं के बेस पे ये हिस्ट्री लिखी जाती थी, हिस्ट्री पढ़ी जाती थी, बोली जाती थी. But it changed after when Gotten University, that is in 1737 CE, जब जर्मन की यूनिवर्सिटी ने इस चीज को फाउंड आउट किया कि history should be dependent on the first, it should be dependent on the past and then the future. It should relate to the future event also. अगर कोई हिस्ट्री है तो उसको फ्यूचर से हम कैसे जोड़ेंगे. लेटर दिस यूनिवर्सिटी बिकम द हिस्टोरिकल सेंटर. अब हर एक स्टैम्प ड्यूटी, जैसे हम बताए कि वो ऑथेंटिसिटी कहाँ से प्रूव होगी, तो ये प्रूफ होना स्टार्ट हुई जर्मन से. जर्मन ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया बाय सेइंग दैट हिस्ट्री के लिए अगर कोई भी चीज हमें प्रूव करना है तो उसे हिस्ट्री के थ्रू जर्मन यूनिवर्सिटी से अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है एंड हैव टू गिव द रेलेवेंट एविडेंस. ओके, सो देयर वर मेनी स्कॉलर्स ड्यूरिंग दैट टाइम, और वो सारे स्कॉलर्स में से फर्स्ट स्कॉलर्स है जिसने दे वर स्कॉलर्स लाइक जो आप पढ़ते वैसे स्कॉलर नहीं, दे आर द स्कॉलर्स हु हैव गिवन मच मोर अबाउट हिस्ट्री हमारे हिस्ट्री के अंदर. And they have even have written lots of history. और ये हिस्ट्री सिर्फ जर्मन के अंदर की नहीं है, they are all related to other also. There are French philosopher, there are Spanish, there are this German philosopher. There were many philosophers who started giving their own reason, and in that the first one was Rene Descartes. You can see the this one 1596 to 1650. He was the one who was the foremost among scholar जिसने insist किया था. इसका मतलब था he was the one who said that verifying the reliability of the historian document by critically examining. इसने first method दिया था कि for example you can say he a judge है, okay, Rene Descartes जज है. अब वो जज करने के लिए एक क्राइटेरिया दे रहा है कि इफ आई वांट टू जज अ डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट बाय सम अदर हिस्टोरियन, उसको रिलायबिलिटी होनी चाहिए डॉक्यूमेंट. ये बहुत बहुत क्रिटिकली होना चाहिए. इट शुड लाइक एक एक माइन्यूट डिटेल्स भी निकालो, उसे जज करो, उसे पूछो. ही इंसिस्ट ऑन दिस कि इफ एनी ऑफ द पर्सन इज सबमिटिंग देयर हिस्टोरियन थिंग, इट शुड फर्स्ट हैव अ प्रॉपर और क्रिटिकली मतलब बहुत खड़ूस तरीके से
शॉर्ट फॉर्म, मतलब बहुत खड़ूस, बहुत जज करना, एकदम डीप में जज करना। तो वैसा था कि वो डीप में एक्सपेरिमेंटेशन उसका होना चाहिए। He also has written a book that is Disclosure on the Method, where he has given the scientific method of research. जो हम लोगों ने already deal करे कि scientific method कैसा होता है, पहले gathering of information and hypothesis. I think you're much aware of this now, scientific reason का. So ये scientific reason. So he gave a clear statement by saying, never to accept anything for true till all grounds of doubts are excluded. या इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी चीज हम तब तक उसको सही नहीं बोल सकते जब तक कि उस चीज के ऊपर हमारे डाउट्स क्लियर ना हो जाते। डाउट्स सिर्फ एक छोटे मोटे नहीं, ऑल द डाउट्स। उसे जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने दी क्रिटिकली एग्जामिन, वैसे ही अगर सारा क्रिटिकल एग्जामिन खत्म होता है तो ही वो ऑथेंटिसिटी उसको मिलती है डॉक्यूमेंटेशन की। So Rene Descartes की बहुत ज़्यादा stories है. If you want to learn much more about Rene Descartes, you can even Google it. You can even find out he has written many books, and he was a one because he इनकी जो date है 15, इसके बाद सारे philosopher आए हैं, and then they started thinking, then they started giving much more about it. There are many who has written national assembly for their countries. नेशनल असेंबली मतलब ये नहीं कि जन गण मन हमारे नेशनल एंथम की तरह, नेशनल असेंबली लाइक हिस्ट्री बनाना, हिस्ट्री मेकिंग के लिए. Okay, so next one was Voltaire. Voltaire was he was very well known in many of the part of the country, just not because of his the great work he actually had done. When people do for human beings, when any kind of being do for something good for the other person, it is ultimately the person will be the great person. For example, if we take Swachh Bharat Abhiyan, he is doing for us, who PM Modi, so it becomes a great ruler, we can say. The same way Voltaire, these people were only examining that. For example, Rene Descartes were only examining the documentation. वो सिर्फ डॉक्यूमेंट से डील कर रहा था और एविडेंस से. बट दिस वोल्टेयर 1694 आफ्टर रेने डिस्कार्ट्स ही केम, 1694 to 1778, this was the original name was Francois Marie Roy, and he was a German, he was a French philosopher जो हर एक तरीके से अपने आप को डील करता था. In the major part is that he doesn't only deal with the documentation, he also deal with the humankind. How? He always said that he opined that chronology of the past historical event should important. Chronology मैंने बताई एक के बाद एक. So उनका कहना था कि historical event हर एक deal के बाद होना चाहिए. For example, जैसे हड़प्पा काफी टाइम पहले डूब गया था, बट वो अभी 5000 years ago ही हमें मिला है, लाइक इन्वेंट हुआ था. बट 500 लाइक उसे जब फाउंड आउट किया तब तक बहुत सारे सेटलमेंट हो चुके थे. उसके बाद हम हिस्ट्री पढ़े कि हड़प्पा वाज द वन इंडस्ट्री मतलब ये सिविलाइजेशन शुरू हुआ था. सो लाइक दैट वोल्टेयर ने कहा है कि क्रोनोलॉजिकल के साथ हम हिस्ट्री लिखना चाहिए. वी कैन नॉट जंप कि हमारे को पहले इंडिपेंडेंस मिला, देन एंशियंट हुआ, देन मॉडर्न हुआ. नो, वी शुड गो विद द previous one, ancient, medieval, and then modern. So he insists on this. It also emphasizes on understanding human life while writing history. It is said that he deals with the social traditions, trade, agriculture, economy with equally importance in historiography. It gave rise to the thought that understanding all aspects of human life is important while writing history. अब मैं इसकी आपको एक छोटी सी और एक डिटेल बताती हूँ. वोल्टेयर बहुत इंटेलिजेंट था in the wit and style writing, and he was a very remarkable philosopher in German, in France, and till now उसकी philosophy बहुत जगह चलती है. He also, he was also at the time of Louis 16 and 15. This history is not been yet developed to you. ये उस टाइम की बात है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड हो रहा था. That time he has given many of these kind of philosopher कि if you want to write in history, you need to give a proper evidence. But
एविडेंस डज ओनली मीन कि नॉन लिविंग थिंग ही होना चाहिए, लिविंग थिंग का भी इम्पोर्टेंस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें महात्मा गांधी फ्रीडम नहीं देते, सो हाउ कैन वी से दैट महात्मा गांधी वाज द फादर ऑफ अ नेशन? हमारे पास क्या एविडेंस है कि हमको इंडिपेंडेंस मिला है? जस्ट टू शो दैट वी हैव अ ट्राई कलर फ्लैग, और जस्ट टू शो अ पिक्चर्स बाय सेइंग दैट कि इतने लोग की डेथ हुई थी या बॉर्न हुए थे, एंड सो मेनी फाइट्स वर देयर, इतने वेपन्स आर्म्स ऐसे हुए थे. नो, डॉक्यूमेंटेशन भी प्रेजेंट है, प्लस हमें ह्यूमन डीड्स पता है. सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या इसमें योगदान था, महात्मा गांधी का क्या योगदान था, एंड मेनी मोर peoples के क्या, who was the ruler who came into India, why they came, we have that also. उनके स्टेटमेंट्स है, जय जवान जय किसान, जो उनके स्लोगन्स है, वी ऑल हैव प्रिजर्व. अब ये प्रिजर्व करने के बाद फर्स्ट हमें तो बेटर है कि उनके खुद के हाथ के प्रिजर्वेशन हमें मिली है, बट उसे मॉडिफाई किया जाता है एवरी नाउ एंड देन बाय द अदर हिस्टोरियंस टू राइट इन अ फॉर्म in an attractive way, as you feel history is a boring for some. Like for example, if you read some kind of history, you do not have any kind of pictures, you can not have any kind of saying, then you feel very boring to understand who were they, what was there happening. But when it is given, for example, this modern time when everything is in front of you, it becomes easy. As you can see, the clear pictures are not given, they are just a statue or they are the painting. जैसे हम गौतम बुद्धा की बोले, गौतम बुद्धा का कैसा था, जब तक वो अलाइव थे तब तक उनकी कोई भी पेंटिंग्स नहीं थी, उनकी कोई भी स्टैचू नहीं था. आफ्टर ही डाइड, तब उनका सब स्टैचू, वाई, जो उनको देखे थे उनके बिहाफ, उनके हिसाब से बनाए थे. सेम वे सेम वॉल्टेयर भी डील करते हैं. Voltaire was also known for his poems, biographies, essays. He also have written many kinds of drama, traditions and belief in the institution. He was also the foremost members of the church and the state of France. If you want, is Voltaire was a pet name, but because in history it was very flourished, तो उन्हें Voltaire के नाम से ही जाना जाता है. Other than that, उनका main real name है Francois Marie. Uh, he was a son of the notary. He was educated at the college. He had studied much more. He left school at the age of 17, and in he was very altruistic. यानी वो God's words में ज़्यादा believe नहीं करते थे. He was like, whatever is deal, it's deal in the human being. Whatever is there, it's deal with the humankind. तो वॉल्टेयर की ये खासियत थी. If I'm going fast, please let me know if you're joining something. Okay. And then Voltaire was sent to Bastille for learning much more about religious. जैसे कि बताया कि वो चर्च में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करने लगे थे. And then he started writing the philosopher. जब हम कहते हैं ना, when you think too much, when someone is thinking of what are you thinking, what is all about. While thinking only, we get the capacity to judge, to ask question, to raise an to raise an important one, दैट हमें उस चीज का ग्रास्पिंग कुछ पावर मिले, कि हमको कुछ पता चले कि वो चीज कितना इम्पोर्टेंट है. द सेम वे फिलोसोफर बन, ये इनको जब स्टडीज से बाहर जाना पड़ा, जब अपने आप को, so he started developing, he started the seeing of the nature of the world. He was at the time of this revolutions thing, जहाँ बहुत वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुके थे. And then he was also went to England for further continuation of the studies. वहाँ पर उन्होंने study की है. He also deal with the ideas of the mathematics and scientists. Sir Isaac Newton के साथ इनका बहुत सारा काम किया गया है. So even in the science, Voltaire का बहुत ज़्यादा हाथ है. It is not that he was only the historian. He was just a philosopher. He has given many more religious tolerance के बारे में, उनके चर्च के हिसाब से religious के ऊपर उन्होंने बहुत सारे डील किए हैं. टाइम एंड अगेन नेचुरल साइंस जो होता है, जैसे कि चेंजेस जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं, अगेन अगेन टाइम जैसे डील करता है वैसे सारी चीजें चेंज होती है. वॉल्टर का भी वही मानना था. वॉल्टर ने अगेन इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे ड्रामास और बुक्स पब्लिश किए हैं. And then Voltaire was also called to the Swiss to give a betterment of the European intellectual. And he was a very critic outspoken. वो बहुत ज़्यादा critically outspoke कर देते हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ से डील होता है. As you can see in the text given very clearly, he deal with the trade, agriculture, social, everything.
He was not like Rene Descartes who only think of critically examining the document. He was the one जो हर वोल्टेयर कैसे थे, हर एक चीज को उनको डील करना अच्छा लगता था, जानना अच्छा लगता था, पढ़ना अच्छा लगता था. Are you understanding dear? Then Voltaire had become the French Revolution के बीच में भी in the history French Revolution के बीच में भी एक important philosopher थे, because during that time he wrote many philosophical studies and he has placed work in writing. People के लिए उन्होंने बहुत सारे quotes लिखे हैं for the betterment of social, economic and political power. So he was the one who has given many much more in history. Understood? So next is the next philosopher, that is George Wilhelm Friedrich Hegel. He was in 1770 and 1831. As we have seen, first one was Rene Descartes, 15, and then we saw the that Voltaire. Then we see this one, George William Friedrich. He was a German philosopher. ये जर्मन के थे. उससे पहले वाला भी हम जो देखे, वॉल्टर वाज अ फ्रेंच. Now what he has to deal with, he says that instead of telling about the chronological past, he insists on writing historical writing while having a logical manner. Logical manner simply, अगर हम लॉजिकल को कंपेयर करें तो लॉजिकल इज सिंपली नथिंग बट अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. बट स्टिल ही से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अगर हम हिस्ट्री रिकॉर्ड करने जाएंगे तो समथिंग मे बी लैकिंग, something may come, something may not come in the eyesight. So he say instead of writing that, let have the writing of logical order. हम सोचते इसके बाद क्या लॉजिक, ए के बाद बी आएगा, we can't say directly ए के बाद सी आएगा, though ABCD is invented like anyhow. So he said it should be in a logical manner. After this should be coming. Then to him, the timeline of historical event was indicated of progress. Again, he said the same thing. टाइमलाइन जो डील किया गया है लॉजिकल वे में जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने देखे रेने डिस्कार्ड्स 15th सेंचुरी में थे, देन वोल्टेयर 16 एंड दिस वन इन 17. So again and again they are dealing with their own logical manner, and this he has said presentation. He also insists that the presentation while giving a history writing, it changed over and again. Why it changed? It changed because of the space, because of the society, or because of an evidence also. ये वाला चीज मैंने आपको फोर्थ जब प्रिंसिपल एक्सप्लेन हो रहा था, फोर्थ प्रिंसिपल एक्सप्लेनेशन में तब भी डील हुआ था. पर्सपेक्टिव ऑफ एवरी ह्यूमन इंडिविजुअल विल चेंज. अलग अलग इंडिविजुअल अपने हिसाब से चेंज करेंगे. एंड हेगल फिलोसफी कन्विंस दैट historical methods were not of lesser quality, though they differ from scientific method. इनका जो कहना था लॉजिकल, so he say साइंटिफिक मेथड से अलग लॉजिकल होता है. साइंटिफिक इज लाइक हमें इसके बाद ये स्टेप करना है, उसके बाद ये स्टेप करना है, बट लॉजिकल वैसा नहीं होता. लॉजिकल इज जस्ट यू हैव टू पुट ऑन योर लॉजिक, आफ्टर दिस व्हाट विल कम, सिंपली इट शुड कम. तो इसका चेंजेस नहीं होना चाहिए. सो लॉजिकल ऐसा था, और साइंटिफिक हमने जैसे देखे ऑन गोइंग प्रोसेस, एक के बाद एक के बाद एक होता है. So these two have a different thing. इनका अपना ही तरीके से चल रहा था. He one said his name was also in the topmost philosopher while saying after Voltaire. He after Voltaire इनका नाम बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में लिखा गया, बिकॉज इनकी जो लॉजिकल रीजनिंग पावर थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और इस स्ट्रॉन्ग रीजनिंग की वजह से इनका जो इनका जो डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट होता था वो बहुत एक्यूरेट होता था, जिससे आप कितनी भी क्रिटिकली टाइम एग्जामिन करो तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड होता था. वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम अंडरस्टैंडिंग द नेचर इज इम्पोर्टेंट. इनका कहना था कि जितने भी आप डील करोगे हिस्ट्री के, उसका नेचर बहुत सिंपली ऑब्जेक्टिव, उसका बहुत क्लियर होना चाहिए. कि आप अगर आप कुछ चीज़ ढूंढ रहे हो या कुछ चीज़ लिख रहे हो, पहले तो उसका एम समझ लो कि वो किस बेस पे है, एंड देन यू फाइंड आउट द कंक्लूजन एंड सोल्यूशन फॉर इट. So he was very in his, he had done like nature. Now he has written also many books, which is encyclopedias of philosophical science, and he also gave a reason in history. इस जो कि जो बहुत ज़्यादा पब्लिश हुई थी और जो बहुत ज़्यादा वेल नोन है.
इवन दो इट वॉज रेफर्ड नाउ ऑल्सो, ये आज भी रेफर किया जाता है। एंड इट इज ऑल्सो डील, अगर हमें कुछ स्टडी करना है कि लॉजिकल वे में, लॉजिकल पावर में हम कैसे जाएंगे, तो इसको आप पता करते हैं। Now it is very good to know that this was given by this George William. It said like Hegel collapsing meaning power of any event happen in terms of two direct options opposite. That is it कि अगर कोई भी हम लॉजिकल रीजनिंग देते हैं उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है, इधर गुड और इधर बैड, इधर वर्स्ट और इधर माइट बी ग्रेट। सो ये हमेशा कहते थे कि नेचर, अगर इफ यू आर डीलिंग द लास्ट पॉइंट इज क्लियरली अकॉर्डिंग टू हिम अंडरस्टैंडिंग द नेचर इज इम्पोर्टेंट। So he say that if you're seeing the nature, there will be true or false, there will be good or bad, or there will be right or wrong. मतलब हमेशा उसका टू अपोजिट होता था। तो इफ यू आर राइटिंग तो इसका क्लॉज, क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं है कि कोई भी आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन एग्जामिन करके एक्सपेरिमेंट थ्रू साइंटिफिकली थ्रू दे, ये बाबा दिमाग से, पाण्याची बॉटल मांगा ना। दिमाग से लॉजिकली चलता था। लॉजिकली समझने के लिए नेचर का, कि अगर हम कोई चीज लॉजिकली, फॉर एग्जांपल इफ यू मेकिंग और बेकिंग अ केक, लॉजिक लगाना है कि बेकिंग के बेकिंग कर रहे हैं तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इज कंपलसरी टू बेक समथिंग। अदर देन इफ यू कांट से पुट अ सॉल्ट तो समथिंग कुछ अलग से सोडियम का कुछ अलग रिएक्ट। सो लॉजिकल होना चाहिए कि वॉट एवर यू आर डूइंग देयर शुड बी अ लॉजिक। So in order to understand this thing, he said that similarly this method should be analyzed on the basis of opposite, और इस वर्ड को उन्होंने नाम दिया था डायलेक्टिक्स। जैसे कहा जाता है कि डायलेक्टिक्स इज एन आंसर इन योर एग्जाम राइट नाउ आल्सो, कि जो भी अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो, जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो उसका अपोजिट जो भी आपको मिलता हो, उस वर्ड को हम बोलते हैं डायलेक्ट। In his theory, he also proposes with a beginning which is called thesis. Thesis is nothing but a real documentation. Thesis बनाना बहुत easy होता है। Thesis, yes, Runjan, मैम डायलिसिस से फिर से रिपीट करो ना। one second. Dialectics, if you are having a page number 7. मैम Yes, मैम आपने मतलब कितना पढ़ा लिया, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। very good dear. Congratulations. मैम Nothing, नेट का कनेक्शन चला गया था। okay, no issue. अच्छा, do you heard about like what I've said about George William Frederick? जर्मन फिलोसोफर था। हाँ, वो जर्मन फिलोसोफर थे, ओके थे। एंड देन हमने देखे वो 17th सेंचुरी के टाइम पे थे, 18 तक का। एंड इवन दो 17 तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा फिलोसोफर, हिस्टोरिकल सब बहुत ज्यादा देश भर में गूंज उठा था। बट इससे पहले जो हमने देखे थे, वॉल्टेयर ह्यूमन काइंड से डील करने का बताते थे कि हमें अगर ह्यूमन काइंड करना है तो कैसे करना है। बट इनका कहना था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेटर नहीं है, बेटर है लॉजिकल रीजनिंग। क्रोनोलॉजिकल जैसे हम बताते ना, एक के बाद एक के बाद एक, तो ये कहते थे अगर टाइमलाइन बनाना ही है तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो ठीक है उसके लिए, बट लॉजिकल रीजनिंग भी चाहिए ना, कि हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। सी ये इनका पर्सपेक्टिव है, दिस इज आर नॉट माय पर्सपेक्टिव, दिस इज नॉट व्हाट बुक इज गिवन, दिस इज देयर ओन पर्सपेक्टिव। ये इनकी राइटिंग है, ये इनका बोलना है, तो आपको इनको जज करना है। आप इनको देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा आपको लगता है सही बोल रहा है या सही कर रहा है, या एनीथिंग दे आर टेलिंग समथिंग। सो लॉजिकल, इनका कहना था कि लॉजिकल रीजनिंग है। इनके जो प्रेजेंटेशन होते थे ना, ये चेंज होते थे बार बार। ये क्यों चेंज होते थे? क्योंकि ये बोलते थे जब जब मुझे एविडेंस मिलेगा तब तब मैं प्रूव करता रहूंगा। सो इट इज लाइक ओवर एंड ओवर, टाइम एंड टाइम अगेन ये चेंज होते थे। तो व्हाई इट इज चेंज? क्योंकि इनका सिर्फ एक था कि मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट नहीं करना और एक बार ही नहीं दिखाना, मेरे को उसको बार बार एविडेंस के थ्रू, अगर मुझे कुछ अब मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा, मैं बार बार हड़प्पा इसलिए लेती हूँ बिकॉज उसके बहुत सारे एविडेंस, उसके बहुत सारे साइट्स गूगल पर अवेलेबल है और बहुत ईजी होता है उसे समझने के लिए, इसलिए मैं सबसे बेसिक लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा, हड़प्पा तो अभी तक जो उन लोग ने इतने साल खोजे, उसके जो प्रिजर्व करके रखे हैं वो अभी तक वो लोग पढ़ ही रहे, जैसे लैंग्वेज समझ रहे हैं, उसके बारे में और डील कर रहे हैं। एंड देन फाइनली मतलब अब कुछ अगर मुझे हिस्टोरियन था,
just go through Harappan side, I'll go to the place, I'll go to that and then find out the reason. पर अगर मेरे लॉजिकल रीजन के हिसाब से मैं चलूँ तो फिर कुछ अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा में कैसे बोला गया था लास्टली कि जब उनकी डेड बॉडीज रखे जाते थे तो उसके आसपास लोग खाना रखते थे. उनका कहना ये था कि डेड बॉडीज उठ के खाना खाती है और फिर सो जाती है. ये हड़प्पा के राइटिंग्स में दिया गया है. बट क्या ये एप्लीकेबल हो सकता है? इफ यू थिंक नाउ, आई आस्क्ड यू क्वेश्चन, क्या आप सोच सकते हैं कि डेड बॉडीज उठ के चाय नाश्ता करेगी या पिज्जा ब्रेड खाएगी? कॉमन थिंग है, कॉमनली नॉट. बट हड़प्पा किस इस पे सोशल वे में उनका ये क्लियरली डिफाइन किया गया है क्योंकि उनके डेड बॉडीज के पास था उनको पॉट्स, अर्दन पॉट्स और उनको फूड ग्रेन्स मिले हैं. तो उन लोग ने ये सोच के लिखे हैं कि इनके मरने के बाद भी लोग उठ के खाते हैं. तो हड़प्पा पीपल यूज्ड टू बरी देयर डेड बॉडी, पर उनको समझता नहीं था कि क्या है. पर क्या अब पर अगर हम अभी वही चीज को लेके चले और हम ये सोचे कि डेड बॉडीज गेट अप एंड ईट, तो क्या ये रीजन मिल रहा है? नो, ऑफ कोर्स नो. दिस इज लॉजिकल थिंकिंग नाउ. मैम पर हड़प्पा सिविलाइजेशन की लैंग्वेज अभी तक डिफाइन नहीं हुई ना. नहीं हुई तो यही तो बता रही हूँ ना, ये पर्सपेक्टिव दे रहे हैं लोग. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दीज आर द पर्सपेक्टिव. ये इनका कहना है. जो सर्च करने गए थे, जो डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं, हर हिस्ट्री अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करती है. यू कैन नॉट से कि एक ही, मतलब फॉर एग्जांपल इनके पेरेंट्स से कितने निकनेम दिए होंगे तो इनके एरिया में वो निकनेम चलते हैं. बट इफ ही हैज चेंज हिज होल कंट्री एंड कम टू, क्या उनके निकनेम से इनको यहाँ पर जज किया, इनको अलग वे में जज किया जाएगा? द सेम वे जब हड़प्पा की पूरी हिस्ट्री लिखी जा रही है, सर जॉन मार्शल, अल्फ्रेड, इन सब के अलग अलग लोगों ने उसको रिसर्च किए, साइंटिफिक उनके टर्म दिए, एग्जामिन किए, डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट किए, साइट्स किए, गूगल किए एंड एवरीथिंग. बट और इनके साथ साथ हमने देखे इजिप्ट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, इनके पास भी कुछ रिलेटेड टर्म्स मिले हैं. तब ये गैदरिंग चालू हुई. बट सब एक ही टाइम पे नहीं डिस्कवर, एक ही टाइम पे सब एक्सकैवेशन नहीं चालू हुआ. कोई पहला मेसोपोटामिया मिला, फिर ये मिला. बट इनके जो मटेरियल्स हमें एक्सकैवेट हुए थे उनके बाद हम लोग ने जजमेंट स्टार्ट करे, तब मालूम पड़ा ना. तो अब जैसे मैं बता रही हूँ कि उनको मरने के बाद ऐसे किया जाता था, तो अगर मैं यही चीज एप्लीकेबल नाउ अभी करूँ as in history, if I say myself a historian and I'll say that this is the thing, it's commonly not, it cannot be. Logical thinking चाहिए because ये मैं 17th century में जी रही हूँ और ये हड़प्पा की कौन सी फर्स्ट सेंचुरी से भी पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसे हमने अब तक रिकॉर्ड ही नहीं करे थे. सो लॉजिकली, इफ यू थिंक लॉजिकली, क्लियर है. बट रेने डिस्कार्ड्स और वोल्टेयर का कहना ऐसा नहीं था. हमने जैसे देखे रेने डिस्कार्ड्स का तो था कि कोई भी चीज मिली है उसको साइंटिफिक टर्म से एग्जामिन करो और डील करो और खत्म करो. वोल्टेयर का अलग ही कहना था. वोल्टेयर ह्यूमन बींग्स को ही दो बिलीव, बट वो गॉड्स में बिलीव नहीं करते थे. उनका कहना था जो भी ह्यूमन डीड्स है, जो भी जैसा है वो कर करके मतलब प्रिजर्व हो रहा है एंड देन जस्ट उसको जॉट डाउन करना है हमें और वो लॉजिकली प्रेजेंट होएगा एक के बाद एक. बट ये इंसान, दिस अ ग्रेट पर्सन, he is like no, we need to give a logical reason also for every now and then. आप लोगों को समझ में आ रहा है अभी कैसे क्लेरिफिकेशन हो रहा है? क्लियर? आई नो इट वाज लिटिल वेरी मच बोरिंग, थोड़ा कंटाल आ रहा था ये सब सुनने के बारे में कि क्या है क्या, बिकॉज ये बहुत छोटा सा इनके बारे में आपको डेफिनेशन, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग. इनकी हिस्ट्री में थोड़ी थोड़ी आपको बता रही हूँ, सुनो समझो कि कैसे कैसे किए हैं. ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं, जस्ट ये आपके दिमाग में रहेगा. बहुत छोटा क्रिस्पी आंसर लिखना है, इनफ. हिस्ट्री इज जस्ट टू राइट एंड गेट द मार्क्स, दैट्स इट. स्कोरिंग सब्जेक्ट, वेल नॉन. आप हिस्टोग्राफी में फुल स्कोर करो, गेट अ वेरी गुड परसेंटेज फॉर इट, बिकॉज ये आपके लाइक बाएं हाथ का खेल कर सकते हो. जस्ट अ स्टार्टअप, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग. कोई भी चीज के अभी हम लोग जैसे रहने आगे और हम साइंटिस्ट के बारे में रीड करेंगे तो क्या आप फॉरगेट कर लोगे कि कौन पहला आया था, कौन दूसरा आया था, कौन तीसरे ने क्या बोला. इनके शायद आपको फेस याद रहे पर नाम नहीं याद रहे, शायद नाम याद रहे फेस नहीं याद रहे. तो उनका एक फेस और नाम के अलावा आप उनको ये से डील करो कि लॉजिकल रीजनिंग क्या था, इनका एग्जामिनिंग पावर क्या था, ये क्या सोचते थे, उतना जान लिए आंसर बनाना बहुत इजी है. गेटिंग? अब डायलेक्ट्स की बात जो आई, जब मैं बताई लॉजिकल रीजनिंग,
जिसे बताई अभी के तौर पे तो हम बोल नहीं सकते कि आफ्टर अ डेथ कोई उठ के पानी भी पी सकता है, कॉमन है। नो, आफ्टर दैट तो हम खोदते ही नहीं है वापस कि वो उसके साथ क्या हो रहा है। वी ऑल नो, इट्स साइंटिस्ट ने हमें इतना डिस्कवर किया है, नाउ ईच इंडिविजुअल नो आफ्टर डेड बॉडीज कहाँ जाती है। हम छोटे बच्चे के लिए अगर बोले डेड बॉडीज हम बरीड कर रहे हैं, तो शायद छोटे बच्चों की पावर थिंकिंग क्या होगी, माइट भी अंदर से कोई खा के चला जाता है या उसको कोई लेके चला जाता है या कहीं घूमने जाते हैं लोग। बट इफ आई टॉक टू यू, you know that there are many microorganisms present in the soil which decompose the body and then you finally get the bones. Yes or no? Why? Because you all are reasoning, आपका पावर स्ट्रॉन्ग है, लॉजिकल रीजनिंग है। आप ये नहीं बोलेंगे डेड बॉडी इसके ऊपर चली गई है, अरे डेड बॉडी तो भगवान पास चले गई, नहीं, कॉमन सेंस है। डीके आप रीजन दे सकते हो, when the nerve stop, your life has been gone and finally it decompose in the soil, that's it. So he said कि हर एक चीज का गुड एंड बैड तरीका होता है नेचर से डील करना। इस गुड एंड बैड को उन्होंने एक टर्म दिया जिसका नाम है डायलेक्टिक्स। ओके, एंड इनकी थ्योरी जो बनाते हैं, जैसे थ्योरी हम लोग कोई आंसर्स की लिखते हैं, थ्योरी है, बहुत थ्योरी, जैसे हिस्ट्री बहुत थ्योरी है, लॉग है, उसको थ्योरी बोलते हैं। तो इनकी जो थ्योरी थी, मतलब इन्होंने जो ये सब चीजें दी है, सी अगेन ही इज अ फिलोसोफर और अ हिस्टोरियन, ही नीड टू गिव अ रीजनिंग आंसर्स, उनको एविडेंस दिखाना है। तो जब ये लिखे थे अपनी पूरी कहानी, अपना ये सब रीजनिंग लॉजिकल विद एविडेंस, तो इनका जो लिखा हुआ है, हम उनको ऑटोबायोग्राफी नहीं बोलते क्योंकि इनकी लाइफ से डील नहीं है, इनके एक्सपेरिमेंट से जो ये डील करते ना, इसको कहते हैं थीसिस। रिसर्च मेथड को बोलते हैं थीसिस, याद रखो स्टूडेंट्स। थीसिस इज अ जर्नल टर्म व्हिच इज यूज्ड डेली आल्सो इन योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि थीसिस का मीनिंग हर जगह अलग अलग चेंज होता है, नो। थीसिस का मतलब यही होता है अ रिसर्च डन बाय योरसेल्फ फॉर सो एंड सो थिंग। तो कोई भी अगर आपने एम रखे हो उसको फाइंड आउट करना है विथ बहुत सारे रेफरेंस बुक के साथ, ऐसे नहीं कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल इफ आई से मैंने थीसिस की थी, मैंने थीसिस किस चीज पे की थी मैं बताती हूँ। मैंने की थी माइंड डेवलपमेंट, बच्चों लोग का माइंड कैसे डाइवर्ट होता है, छोटे छोटे बच्चों का, ठीक है। बट क्या मैं एक बच्चे को देखकर माई थीसिस इज प्रेजेंटेड बाय सो एंड सो थिंग, बट क्या मैं एक बच्चे को देख के बोल सकती हूँ कि 6 मंथ से वो लोग टर्न होना शुरू होंगे, ठीक है, तो सारे बच्चे 6 मंथ में टर्न हो सकते हैं। 9 months में they will crawl, can I say 9 months में all small babies can crawl? मैं फिर बोलूंगी 1 years में उन लोग दाल चावल खाना शुरू कर देते हैं, can I directly give a reason कि हाँ 1 year में भी हर बच्चा खाना शुरू कर देगा? नहीं, मेरा एविडेंस का है, मैं एक बच्चे को देख के ये जज नहीं कर सकती, मैं अपना पर्सपेक्टिव नहीं फील कर सकती, नॉर आई कैन से कि मैं तो बुक बनाना चालू कर दी बिकॉज मुझे पता चल गया है कि बच्चे लोग का स्टेजेस कैसे होते हैं, उनको खाना ये टाइम पे, नो, this is not a logic also, this is not my scientific term also। मुझे थीसिस बनाना है, मतलब मुझे एविडेंस देना है। I will examine many child at one time at particular age, stage, parents, उनके growth, उनके stage, and then final conclusion दूंगी कि मॉडरेट स्पीड बच्चों की ग्रोथ की ऐसी होती है, अप एंड डाउन आते हैं, वो डिफर करता है पेरेंटिंग पे, वो डिफर करता है उनके पेरेंट्स के इनटेक पे, या डिफर करता है बाय हेरिडिटरी। बट नॉर्मल बच्चा 9 मंथ्स पे क्रॉल करता है, ओके, मैं इनको दूंगी एक प्रॉपर वे में एग्जामिन करके बाय मैनी बच्चों की रीजन दिखाकर, ये दिखा के दिस इज माय थीसिस, ठीक है, मैंने रिसर्च की। और मेरे को रिसर्च करने के लिए क्या लगता है, आपको एक दिन काफी है? नहीं, अगर मैं बच्चों के साथ 1 साल की बात करी तो मुझे फर्स्ट डे ऑफ अ चाइल्ड से लेकर उनके 1 ईयर तक का उनके साथ ही रहना है, उन्हें देखना है, उन्हें जज करना है, उन्हें जानना है कि क्या कौन सा बच्चा, कोई कोई बच्चे तो फटाफट चल लेंगे, कोई तो फटाफट, so दिस इज नॉट माय थीसिस कि मैं कुछ भी अनाप शनाप दे दूं। तो यही सेम होता है जब ये लोग कोई देखो, एक जोक बताती है, इन सब के अगर आप फेस देखो तो सब बुड्ढे ही दिखते हैं, ठीक है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि ये लोग पहले से ही बुड्ढे होते हैं। एक्चुअली इनकी पढ़ाई इतनी होती है, इनको जाना पड़ता है, इनको मतलब उधर ही रहना है, तो इनका एक प्रॉपर घर, कभी हम लोग इनकी फैमिली ट्री नहीं पढ़ते हैं, हम इनके बारे में पढ़ के हटा देते हैं कि चलो ये ऐसे ऐसे, हाँ ठीक। क्यों? क्योंकि जब इनका आता है पूरा पावर, तो वो तब तक ही उनकी थीसिस बनाने तक उनके यही हाल हो जाते हैं, जैसे हम देख सकते हैं।
तो जो अपने देख रहे हैं हम, जिस सबकी फोटोज एज यू सी के बड़े बड़े बाल होते हैं, ये तो हम पेंटिंग से उनके बाल घुंघरालू अच्छे से कर देते, बट एनीवेज दे आर लाइक नथिंग, दे आर इन दैट वर्ल्ड ओनली कि उनको पढ़ना है, उनको जानना है, उन्हें देखना है। तो लॉजिकल रीजनिंग कंपलसरी है। एंड देन उनकी एंटीथेसिस यानी अपोजिट, अपोजिट कैसा था कि कॉन्ट्राडिक्टरी, जैसे मैंने बताई, मैं 4-5 बच्चों को देख के ही बता सकती हूँ कि हाँ ठीक है ना, बच्चे ऐसे ही खा लेते हैं, कोई बच्चे फटाफट खाते हैं, कोई बच्चे नहीं खाते, मैंने ऐसे दे दिया पावर, दिस इज माई एंटीथेसिस, आई एम गिविंग अ कॉन्ट्राडिक्टरी ऑल्सो। पहले तो मैं थीसिस दे रही हूँ, फिर मैंने उसका एंटीथेसिस भी दिया है कि मैं उसका अपोजिशन भी बता सकती हूँ कि ओके आई टेक अ 5 to 10 स्टूडेंट्स और उनके बेस पे भी डील कर सकती हूँ। 10th स्टैंडर्ड है भाई, पढ़ने में मजे नहीं आ रहे उनको, पर ऐसे तो नहीं हर 10th स्टैंडर्ड बोर हो रहा है, कोई कोई तो आपसे ज्यादा पढ़ रहा है, कोई कोई आपसे कम पढ़ रहा है, कोई कोई लीस्ट ऑथर है, डिफर विथ एवरी इंडिविजुअल। बट एक एरिया होता है जहाँ आप हम देख रहे हैं 10 स्टूडेंट्स आर पेइंग अटेंशन। अब बट ये 10 स्टूडेंट में से आधे तो सो रहे हैं विद देयर वाइड आई ओपन, आधे जज कर रहे हैं अपने आप को क्योंकि ये ऐसा थिंक है, आधे वेरी कीन ऑब्जर्वर हो रहे हैं। डिफर, yes or no, it's differ, आधे sleepy, आधे eating में busy, आधे, it's differ, the perspective here also differ. Make sure this answer is there in your exams, antithesis also, thesis, dilates। तो अगर आपको इस सब चीज के बारे में बोर होता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं लिखना है, you can give a very short example. This was propounded by the George William Hedrick in 17 years. One more thing which is very very important, I tell you on a very first day, और मैंने आप लोग को सबको पहले भी बता चुकी हूँ, बट फिर भी मैं आप बता रही हूँ, इफ यू फॉरगेट द डेट, अगर आप कोई हिस्ट्री में किसी की डेट भूल जाते हैं, रॉन्ग डेट लिखने से आंसर रॉन्ग होता है, पर डेट नहीं लिखने से आंसर नहीं रॉन्ग होता है, याद रखो। ये ना अपने दिमाग में भर लो। सबके यहाँ पर हिस्ट्री फेवरेट नहीं है, 2-4 लोग की हिस्ट्री फेवरेट है। अगर आपको विलियम और फेडरिक हेगल का डेट नहीं याद हो रहा, 70 नहीं याद हो रहा, माय गॉड मैं क्या करूं, कुछ मत करो, उसको छोड़ के उसके बारे में लिखो, पर उसका गलत नहीं, 70 कुछ मत करो, वो जज होता है करेक्शन में और उसे रॉन्ग दिया जाता है। ठीक है, ये हिस्ट्री में बोर्ड करेक्शन का रूल है। बेटर फॉरगेट, आई कैन सी देयर वर मेनी, आपको अब तक पहले का भी नहीं पता है डेट क्या है, सिर्फ इतना पता है वो 15 का है, देन वी गो 16, clear here? So this is one more answer. Please go through the dialects which is there on the page number 4. छोटा सा है, आप इसको अपने own words में भी बना के मुझे send कर सकते हो, I'll give you the answer. If you have master key or reliable, please do not rely पूरी तरीके से, I'll prefer you rely mostly on the textbook because textbook से आप अपने better answer बना सकते हो। अगर आप preparation आज से कर रहे हैं, it will be very easy. First chapter थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी है, उसके बाद बहुत easy topics है। बेटर है एक ही बार बुक बनाओ, इजी बनाओ, और फुल ईयर अपने हाथ के नोट्स बेटर होते हैं, दैट्स क्लियर। सो ज्यादा आपको टेक्स्ट बुक ये मास्टर की, रिलायबल, टारगेट, इस सब चीजों के लिए बैठना नहीं पड़ेगा, सब आंसर यहाँ पर अवेलेबल है। एनी डाउट रहेगा, आंसर्स आप मुझे फॉरवर्ड करो, मैं आपको उसका करेक्शन करके सेंड कर दूंगी। ओके, शैल आई मूव फर्दर नाउ? एनी डाउट फॉर दिस थिंग? और कुछ कुंजन, कुछ समझा कि नहीं समझा? कुंजन चले गई? अच्छा है। मिसबा, कशिश, पक्का, विवेक, अब्राय, मेरी अजय देवगन, अजय, समझा? मेरी आवाज आती भी अजय? 10 टाइम्स तो इन और आउट होता है ये, इन एंड आउट। ओके, देन आई विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट। Next one is Leopold von Ranke. He is 1795 after this to 1886. Leopold के बड़ी बड़ी कहानी है, even you can see, as you can see उनका way of dressing and Ranke, मतलब उनके एक पोस्ट से, एक पोजीशन से, कि वो कितने अपने आप को ना समझते थे कि मैं कुछ हूँ। एनीवेज वो बहुत कुछ थे, बट
ऐसा था कि इनका जो मानना था बहुत स्ट्रिक्ट मानना था। ये कहते थे कि मतलब ये 19th सेंचुरी मतलब के टाइम पे ज्यादातर इन्फ्लुएंस हुए थे इनके थॉट्स। He was from the Berlin University, it's there in the textbook also. He spoke about the critical method of historical research. He put emphasis on the utmost importance of information gathering through original document. He also stated that all types of documents associated with a historical event need to be examined with greatest care. He believed that with this method it was possible to reach the historical truth. He criticized imaginative narration of history, collection of articles in his publish, and he also published the book The Secret of World History and the Theory of Practice of History. इनके आप फेस को देखो, ये इतने गौर से देख रहे हैं। वैसे इनका कहना था, इनका भी यही कहना था कि कोई भी चीज ये जॉर्ज विलियम की तरह लॉजिकली नहीं बात कर रहे। ये इनका कहना है कोई भी चीज आने दो बस, बट क्रिटिकली इसको और मैं जज करूंगा। मतलब इस इनका काम, इनका तरीका कैसा था, फर्स्ट वाले की तरह, रेने डिस्कार्ड्स की तरह, कि हमको क्रिटिकली इनके साथ ज्वाइन करो। बट हियर आल्सो ही सेड कि एग्जामिनिंग ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का कैसा था कि जब डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं तो डॉक्यूमेंट मिलने के बाद भी इनका था कि इसको और परफेक्ट एग्जामिन करना है। One section. Karl Marx is also a philosopher. He came in 1818 and 1883. इनको भी देख के हमें बस एक ही फीलिंग आ रही है, ये भी शायद कुछ ज्यादा पढ़ लिखे थे। Yes, true. He has given lots and lots and lots of things in the world. Why? Because इनका जो कहना था ना, वो आज तक reliable होता है. Even now, Karl Marx theory is studied in the standards and standards. और इनकी थ्योरी को पढ़ा जाता है एज अ मेजर सब्जेक्ट। इट इज देयर इन, इफ यू गो हायर टू स्टडी हिस्ट्री, इनका मेजर सब्जेक्ट एज एन हिस्ट्री के लिए भी होता है कार्ल मार्क्स। So here he came in the 9th century. He said that it is formulated like all the theses are formulated, but according to him, he was the abstract idea. It was all about living people. Living people से एक और एक चीज डील होती है जो हमें वॉल्टेयर ने बताया था। वॉल्टेयर also deal with the economy, agriculture, social, political. सेम वे कार्ल मार्क्स का भी होता है। जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल्स देखते हैं ना, फर्स्ट में कैसे देखे थे कि आई थिंक सो लाइक फर्स्ट 3 एलिमेंट्स राइट्स, देन 3 एलिमेंट्स, देन सेकंड उसकी थ्योरी आई थी कि आफ्टर 8 एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट। सेम वे ऐसे ही था। जब 15th सेंचुरी में ये बात निकली थी कि 15th सेंचुरी में रेने डिस्कार्ड्स ने बताया था कि हमें क्रिटिकली ऐसे करना है। 16 में उसका अपोजिट आया था जब हमने डील किए थे, जो वॉल्टेयर ने बताया था कि नहीं, हमें ह्यूमन पावर भी देखना है, ह्यूमन राइटिंग भी देखना है और लॉजिकली रीजनिंग देखना है। बट विलियम ने वापस से रेने डिस्कार्ड्स को अगेन प्रोपाउंड करके अगेन उनके बारे में डाइव करके समझाया कि ठीक है, बट नेचर भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बट इन सब के लिए हमें क्या लगेगा, सिंपल लॉजिकल रीजनिंग। नाउ हियर नेक्स्ट वाला हमने देखे थे लियोपोल्ड वॉन रैंकिन। उनका क्या था, क्रिटिकली, जो अगेन रेने डिस्कार्ड्स से कनेक्टेड था। कहीं ना कहीं इन लोग सब एक दूसरे की थ्योरीज को प्रोपाउंड करके आगे आने के बाद इन लोगों ने डील करे। बट कार्ल मार्क्स इन सबका एक छोटा मिक्सचर है। कार्ल मार्क्स इन सबका एक छोटा मिक्सचर होकर एक अपनी ह्यूमन थ्योरी दिया है। कार्ल मार्क्स का कैसा था कि उनका एक नेचर रिलेवेंट था कि सोसाइटी का स्ट्राटा कैसे डील होता है। हर ह्यूमन बीइंग इज नॉट इक्वल। मतलब उनका कैसा था, every human being, as I told you, all 10 participants here sitting, उनका एक वे नहीं है थिंकिंग रैशनल, इनका डिफर है, ऑल आर डिफर सेम टाइम्स पे। बट कार्ल मार्क्स का मीन्स क्या था कि हर किसी की नीड्स, अंडरस्टैंडिंग पावर, रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एग्जाम डिफर करता है। So he said that human relationships are shaped by fundamental needs of the people and the ownership as well as nature of the prevalent means of production to meet those needs. जैसे क्लियरली सेंटेंस में दिया है, इंडिविजुअल की नीड्स डिफर करती है हर इंडिविजुअल के साथ। वैसे ही अगर इंडिविजुअल की नीड्स डिफर करती है तो सोसाइटी की भी नीड्स अलग होती है। इफ वी से इन अ शॉर्टकट वेरी, और आपके एकदम लो एग्जांपल्स में बताऊं,
हम मुंबई पे इफ आई से कि अभी कोरोना चल रहा है तो हमारी नीड्स फिलहाल ओके फूड ग्रेन इस पे है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं हम मुंबई है, मुंबईकंस है, तो हमारे ज्यादा पर पानी पूरी वड़ा पाव इस सब पे डील करती है। बट क्या यही सब चीज आपको लगता है रूरल एरिया में इम्पोर्टेंट हो रही होगी? आपको लगता है उधर भी उन लोग की इम्पोर्टेंस मतलब उनकी नीड्स फिलहाल पानी पूरी और वड़ा पाव पे होगी? नहीं, उनकी नीड्स होएगी उनकी इलेक्ट्रिसिटी पे, उनकी वे ऑफ फूड ग्रेन्स के ऊपर, कि उनको जो फूड ग्रेन्स मिला। बट मुंबई का और उनका नीड, सी इंडिविजुअल्स का नीड अलग है, हम में से किसी घर में सबकी नीड्स अलग होगी, बट स्टिल इंडिविजुअल तो हो गया, सोसाइटी का क्या? इंडिविजुअल से ही सोसाइटी बन रही है, तो सोसाइटी का क्या? सेम वे सोसाइटी का भी अलग हो रहा है। अर्बन और रूरल के अंदर इतना, अभी हम बैठे हमें मिल रहा है खाना, डेली वी आर ईटिंग, बट स्टिल पानी पूरी एंड ऑल दैट जंक फूड्स हमारे लिए फिलहाल नेसेसिटी बन गए। नाउ एंड देन हमें ऐसा लग रहा है कि ये नेसेसिटी है, लेट्स हैव सम टेस्ट ऑफ इट, बट फूड ग्रेन होने के बावजूद भी इसकी नेसेसिटी बढ़ रही है। सेम वे रूरल में उनकी नेसेसिटी फूड ग्रेन्स के ऊपर तो चलो ठीक है मिल गई उनको, पर उनकी नेसेसिटी फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी पे है, वाटर सप्लाई पे, कि हमारा दिन कैसे गुजरेगा अगर उन लोग को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी ऐसा। द सेम में कार्ल मार्क्स से, कि अगर आप हिस्ट्री एग्जामिन कर रहे हो, हिस्ट्री लिख रहे हो, हिस्ट्री सोच रहे हो, पढ़ रहे हो, ओरिजिनली देख रहे हो, सब कर लिए, बट क्या आपको, ये देखो मैंने एकदम ला एक ही स्टेटमेंट लिखा, ही स्पीक विद एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, लॉजिकल रीजनिंग तो लगा दिए भाई हमने भी, बट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया तो जरूरी है, फंडामेंटल नीड्स। आप तो एक जन की, जैसे मैंने बताया एक बच्चों के बारे में हम देख रहे हैं, एक बच्चे से तो थोड़ी ना डील होएगा कि थीसिस बन गई कि बच्चा क्रॉल करना शुरू करेगा। तो कार्ल मार्क्स का भी ऐसे था, हर एक इंडिविजुअल को पढ़ो, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन हिस्ट्री, हर इंडिविजुअल को कैसे डील करा जाएगा, फिर विद accessibility of these means to different strata of the society may not be equal. This inequality causes a division of the society into classes. तब जाके कार्ल मार्क्स ने ये क्लास थियोरी प्रोपाउंड की थी, जहां पर उन्हें बोला था एक होता है एपेक्स, लोअर, उसके बाद लोअर, जो हम लोग अभी एक नॉर्मल टर्म में बोलते हैं, राशनिंग में बोले जाएंगे, तो एक हाई क्लास, एक मिडिल क्लास और एक लो क्लास, है ना? ये तीन में हम डिवाइड हो जाते हैं बेसिकली, बट ये तीन के अंदर भी डिवीजन होता है। पॉवर्टी आती है जो लोअर टू लोअर मिडिल क्लास की होती है, एक होता है मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास, जिनकी एनुअल इनकम अच्छी होती है, बट इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो कंपेयर करे अपने आप को हाई क्लास से। बट हाई क्लास में भी एक होता है, अंबानी है हाई क्लास में, मतलब ये नहीं कि हर एक जो पैसे वाला है वो भी हाई क्लास, बट ठीक है उसके लेवल का कोई एक और दो चार होएगा, हर कोई उसके लेवल के नहीं हो सकते। उसके नीचे होते हैं लो हाई क्लास। वैसे ये वाली जो स्ट्रैटेजी आई है लाइफ में, न्यूज में, अंडरस्टैंडिंग में, एग्जाम्पल्स में, दिस इज नथिंग बट गिवन बाय कार्ल मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स थियरी है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स कहीं पर भी आ सकती है, इसे भूलना नहीं, डेली लाइफ में भी आ सकती है। हु प्रोपाउंड द थियरी ऑफ क्लास स्ट्रैटिफिकेशन? तो क्लास के बारे में जो डील हुआ है वो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को देखते ही, कार्ल मार्क्स के बारे में जानते ही हमारे इंडियन सोसाइटी में ये थियरी आई थी, जहाँ पर हम लोग ने इस सोसाइटी को, हमने इनकम से नहीं डील किया था, हमने ऑक्यूपेशन से नहीं किया था, हमने उनकी कास्ट और रिलीजन से डील किया था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था। तो कास्ट के बेस पे हम लोग ने जब अलग अलग किए ना हर किसी को, कि लोअर कास्ट, अपर क्लास, देन लोअर अपर, ऐसे कास्ट में, जैसे हम लोग जिसको एक नॉर्मल वे में वैश्य, क्षत्रिय, ये सब चीज में, तो ये हमने कार्ल मार्क्स से सीखा है। बट कार्ल मार्क्स से सोसाइटी का डिफरेंस दिया था, रिलीजन का नहीं, बट हमने इंडिया में उसको अडॉप्ट एज ए रिलीजन बेस पे किया है। तो फॉर योर बेटरमेंट एक जस्ट एग्जांपल है, आप इसको रख सकते हो। कार्ल मार्क्स की एक और थ्योरी है दास कैपिटल, इसका के कैपिटल है, सी नहीं, which treatise written by him and most referred books of all। जैसे मैंने बताया ये आपको हर जगह अवेलेबल है, ये आपको स्कूल्स में आपके कहीं ना कहीं अवेलेबल होगी, बिकॉज इनकी थियोरीज को बहुत पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, समझा जाता है। नेक्स्ट वी कम टू द एनालिस स्कूल्स विच आई हैव नॉट मेंशन हियर। ये तीन टाइप्स के एक स्कूल्स के बारे में दिया हुआ है। एनालिस स्कूल, जब ये सब चल रहा था, खत्म हो रहा था ना, तब एक स्कूल स्टार्ट हुई है। ये स्कूल्स हिस्टोरियन के लिए स्टार्ट हुई थी, कि अब ये हिस्टोरियंस क्या कर सकते हैं, ये हिस्टोरियन कैसे डील करेंगे।
कैसे समझेंगे, कैसे बताएंगे। तो ये एक एनालिस स्कूल्स करके हुआ था। अगर आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, so I'll give you another important which will not connect to your studies but just an information for you। तो वो मैं एक अलग से आपको बता दूंगी एनल स्कूल का। ये स्टार्ट हुआ था फ्रांस में, ये बाय द फिलोसोफर स्टार्ट हुआ था। इस स्कूल्स के अंदर ज्यादा क्या डील होती है पता है? इट्स गिव अ डायरेक्शन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। यहाँ पर हिस्ट्री राइटिंग को डील किया जाता है। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड नाउ हिस्ट्री इज नॉट ओनली द पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ किंग एंड ग्रेट लीडर्स बट इट आल्सो डील विद द वॉर, क्लाइमेट, people, agriculture, technology, means of communication, social division, and their philosophy. It was started by the French historians। ये इतना छोटा सा बताया बट बहुत ग्रेट मीनिंग है, जब आप समझ गए हो छोटा सा। एनल स्कूल्स में सिर्फ हिस्ट्री को मतलब ऐसा पढ़ाने का तौर तरीका उनका ऐसे नहीं था। अगर आप आपके पेरेंट्स को पूछो तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं हम लोग को एक तरीके का सब्जेक्ट था, सोशल सब्जेक्ट, सोशल साइंस बोलते हैं जिसको, जिसमें उन लोग को कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उनको या तो खाना बनाना सीखना पड़ता था, या तो सिलाई होती थी, या तो पीटी होता था। ऐसा कोई एक उनको एज अ सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था। हमने ऑल्दो हमारी पूरी स्टडीज फॉरेन से ही कॉपी किए, तो ऐसे एक टाइप ऑफ उनके सब्जेक्ट होते हैं। इफ यू आस्क योर पेरेंट्स विल गेट एन आंसर कि उनको कढ़ाई बुनाई करके भी सब्जेक्ट होता था, उसमें भी वो लोग क्राफ्ट आर्ट करते। आई माइट इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट। तो ये सब ऐसे ही होता था। बट अभी हम लोग को क्या कंपलसरी होता है, या तो हिंदी के साथ आईटी लो, या तो फिर हम लोग एक मैथमेटिक्स का स्कॉलर सब्जेक्ट ले ले, ऐसे ले ले। ये हमारे अभी बेसिक नीड्स हो गई है, डिफर फ्रॉम द चेंजेस अभी। तो तब ये जब एनुअल स्कूल्स बनी थी तब उनको बोला जाता था सिर्फ हिस्ट्री लिखो मत। हिस्ट्री लिखने के लिए ना सब पढ़ो, सब पढ़ो मतलब ज्योग्राफी भी डील करो। इट इज दैट इज व्हाई हिस्ट्री ज्योग्राफी कनेक्ट, एसएस कनेक्ट क्यों है, एसएस को सोशल साइंस क्यों ऐसा बोला जाता है कि ये कनेक्ट क्यों है? क्योंकि विदाउट नोइंग द क्लाइमेट, विदाउट नोइंग द कल्चर, विदाउट नोइंग द ऑक्यूपेशन, सोसाइटी, एनीथिंग, आप हिस्ट्री लिख ही नहीं पाओगे। कैसे बता सकते कि हड़प्पा पीपल कौन से रिलीजन के थे? येट उनका रिलीजन हमें पता ही नहीं चला। हमें लास्ट टू लास्ट पता चलता है कि वो कोई रिलीजन के बेस पे कोई चीज को प्रेज नहीं कर देते। उनका ऐसा था, विंड आई तो विंड को प्रेज कर देते हैं, बारिश होती थी तो बारिश के भगवान होते थे उनके, जब उनका मून सूरज दिखता था तो वो तभी उनको प्रेज करते थे। क्यों? बाय द एविडेंस, जो एविडेंस उनके बचे थे उनको डील देखने के बाद ये हिस्टोरियंस ने ऐसे एग्जांपल्स दिए कि ये ऐसे से डील होते थे। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोगों ने कैसे ना उनका क्लोथ्स कैसे पता चला। अब सोचने वाली बात है, इंसान तो मर गए थे हड़प्पा के, पब्लिक तो थी नहीं वहां पर, कोई ऐसे जमा थे नहीं उनके हमें। बट जो एविडेंस मिले थे उनसे ये एक एक तरीके से हमने आइडिया लगाया कि शायद उनका खाना पीना, शायद उनकी कल्चर, शायद उनकी लैंड इस तरीके से डील होती थी। उनका पॉट्स जो था, उनके वेपन्स, उनके टॉयज, जैसे कि आप लोग हड़प्पा के टॉयज देखते कैसे, बट किसी ने, हम लोग अब बच्चों के साथ ऐसे टॉयज नहीं होते हैं, पर उनके टॉयज तो ऐसा डील बोला गया कि ये उनकी खेलने के टॉयज थे। मतलब जब टॉयज वैसे थे तो हमने सोचे कि ये एनिमल्स उस टाइम पे थे अवेलेबल। आप जैसे कि देख सकते हो हड़प्पा के टॉयज में कैट डॉग के कोई भी टाइप्स का नहीं है, स्नेक्स का कोई भी टाइप्स का दिखता नहीं है, बट उनके जो टॉयज होते हैं हमेशा बुल, राइनो ऐसे दिखते हैं। तो तब वो जमाने में था। तो कार्ल मार्क्स भी यही कहते हैं कि आप जब पढ़ रहे हो, मतलब उनका भी कहना ऐसी था कि एनल स्कूल्स में जब उनका योगदान था, तब एनल स्कूल्स में जब लिखा गया था तो ये भी था कि सिर्फ लिखने से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ एक चीज सोशली देखना पड़ेगा। क्लाइमेट कंडीशन देखो, हम एप्पल्स मुंबई में नहीं उगा सकते क्योंकि एप्पल सिर्फ कश्मीर में उनको फ्रोजन टेम्परेचर चाहिए रहता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो सब चीजों से डील करो कि क्या हमें कैसा चाहिए। तो एनुअल स्कूल्स बहुत छोटा इजी आपको दिया गया है, जो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 5 में है, और उसको फटाफट आप एक आंसर्स में बना सकते हैं, पॉइंट वाइज लिख के खत्म कर सकते हैं। देन आता है फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। अभी हमने अब तक के देखे सारे मेल डोमिनेट कर रहे हैं पूरी हिस्ट्री के ऊपर, और पूरे हिस्टोरियन पे सिर्फ मेल मेल छाए हैं। ऐसे नहीं है, फीमेल्स के भी बहुत योगदान है, बट फीमेल्स बहुत लेटर पार्ट में आती है। और बेटर पार्ट, बेटर ये बताओ आपको कि इट इज वेरी गुड टू नो दैट द एंशिएंट पीपल यूज्ड टू कीप वुमेन आल्सो ऑन अप फ्रंट। ये मॉडर्न है जो वुमेन्स को पीछे करने गया था, बट इफ यू गो टू मिडिवल एंड even in the ancient type, equally
पोजीशन मिलती थी वुमेन्स एंड मेंस को। सो फीमेल हिस्टोग्राफी का क्या है, जिसमें हम लोग ने बहुत फीमेल इट्स आल्सो इंक्लूडिंग वुमेन इन राइटिंग्स, रीथिंकिंग ऑफ मेल डोमिनेंट। तो ये वुमेन्स क्या करती थी, जो मेल लिखते थे अब उनको वो क्रिटिकली पढ़ती थी, वो जज करती थी। ऐसे तो लोकल है, वुमेन्स और मेंस का दिमाग अलग अलग ही चलता है, कोई इमोशनल होता है, कोई स्ट्रांग होता है। इट डिफर एज पर द इंडिविजुअल, नॉट बाय द जेंडर। अगेन आई रिपीट, इट डिफर फ्रॉम द इंडिविजुअल, नॉट बाय द जेंडर। यू कांट से कि गर्ल्स कम सोचती है और बॉयज ज्यादा सोचते हैं, या बॉयज कम सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं। डिफर, कोई कोई गर्ल्स इतनी स्मार्ट रहती है, कोई कोई बुद्धू रहती है, कोई कोई बॉयज स्मार्ट रहते, कोई बुद्धू रहते, डिफर फ्रॉम द इंडिविजुअल। तो जो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी थी, ये सारे मेल डोमिनेंट जो लिख के रखे हैं, इनको ये क्रिटिकली वापस से एग्जामिन करती थी और अपनी एक तरीके से रिसर्च देती थी, जहाँ पर ये डोमिनेंट पर्सपेक्टिव इट ड्रोव हिस्टोरिकल रिसर्च to focus in depth of various aspects of women life, such as employment, trade union, institution, working for their cause, their family life, ये सब चीजें वुमेन्स लिखती थी। अब तक ये हमने देखे है कि अब तक के कार्ल मार्क्स के अंदर भी ये सब नहीं आया था, कोई एनुअल स्कूल्स में भी ये सब नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में फीमेल ने एक नया मुद्दा उठाई है। इंडिविजुअल और सोसाइटी को भी पढ़ने के अलावा भी घर के अंदर भी स्टडीज होती है, घर के भी अपने ही तौर तरीके होते हैं, डेली चोर्स जो बोलते हैं हम लोग, डेली काम काज के भी वक्त होते हैं, डेली टाइप्स के। तो ये भी अपने तरीके से एम्प्लॉयमेंट सीन है। तो फेमिनिस्ट हिस्ट्री में यही लिखा गया है, इट ऑल डिपेंड अपॉन फंडामेंटल फेमिनिज्म। फेमिनिज्म उनका बिहेवियर, उनकी फीलिंग्स, इसको फेमिनिज्म बोलते हैं, जो डील करती है, ठीक है। एंड इन हिस्ट्री राइटिंग आफ्टर 1990 वुमेन्स वर पोर्ट्रेड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। फिर इसके बाद बोला गया कि वुमेन अपने आप से भी बहुत सारे काम कर सकती है और उसे एक प्रॉपर वे दिया गया था। दिस ऑल वर इन द वेस्ट, नॉट इन द ईस्टर्न कंट्रीज। ये सारा वेस्ट में चक्रव्यूह चल रहा था, जो कि हम लोग ने इसका पूरा अपोजिट फॉलो करे। हमने कार्ल मार्क्स की थ्योरी को पूरा अपोजिट फॉलो करके ये बोले कि कार्ल मार्क्स तो बेचारे सिर्फ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में थे कि क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूट करो, ऑक्यूपेशन वाइज, नोबल, क्लर्जी, ऐसा। हमने उसका उल्टा किया, रिलीजियस वाइज स्ट्रैटेजी बनाओ, क्लास नहीं करो। फेमिनिज्म जैसे यहाँ आया, हम लोग फेमिनिज्म वेस्ट में देख रहे हैं कि लोग एम्प्लॉयमेंट, डेली चोर्स, एक्टिविटी पे डील कर रहे हैं, बट हमने यहाँ उल्टा देखे, हमने यहाँ देखे मेल कैसे डोमिनेट करते हैं फीमेल को। ये देखिए यहाँ पर क्लियरली स्टेटमेंट दिया है, मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव को लोग रीथिंक करते हैं, विच इज देयर ऑन पेज नंबर 5, क्लियरली मेंशन ऑन द पेज नंबर 5 कि ये सिर्फ रीथिंकिंग है। यहाँ पर कोई भी हार्श वर्ड यूज नहीं किया गया है, हार्श वे में कोई फॉर्म बताया नहीं गया है, हार्श तरीका नहीं बताया गया है कि ये कोई जेंडर बायसनेस या इनइक्वालिटी की बात करी है या फिर ऐसा कुछ। जस्ट और नॉर्मल लोकल टर्म में बोला गया कि फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी को कैसे कैसे वेस्ट साइड में भी अप्रिसिएट किया गया था। ओके, लास्ट योर रिलीविंग पावर, ये है माइकल फौकॉल्ट। नाउ हु वाज ही? ही वाज अ फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ द 20th सेंचुरी। ये अभी अभी के मार्केट में आए हुए बंदे हैं थे, and even you can see उनकी एक smiling face दी गई है, which I have not mentioned on my slide. I will give you this slide and submit you where you can see the remaining part of it. Michael Foucault brought a new concept in historiography. इनका तो सबसे अलग ही डील था। वो कहते थे कि उनकी जो बुक थी आर्कियोलॉजी ऑफ हिस्ट्री, उन्होंने वहां पर आर्ग्यू वर्ड लिया है, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा बताया है कि practice of arranging historical event in chronological order is not right आर्कियोलॉजी of knowledge। बुक का नाम था उनकी, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। इनका तो सबसे अलग ही कहना था, ये कहते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो है ही नहीं सही, ये गलत है। इनका मुद्दा था ये गलत है, ये लड़ने चले गए, ये आर्ग्यूड, ही सेड नो इट इज वेरी रॉन्ग। हिस्ट्री कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से लिखा जाता है, इनका ऐसा कहना था। He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth, but attempts to explain various transitions in the past. Foucault felt that explaining the transition in history is more important.
called his method the archaeology of knowledge. अब जैसे हम उन्हें यहाँ देखे इतने सारे अपने अपने वे में बता रहे हैं, बट माइकल फोकल्ट को हंसते हुए देखो अगर आप टेक्स्ट बुक में तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो एकदम क्लियरली बोलते हैं जैसे मैं बता रही हूँ. As you can see, very much laughing face and अच्छा लगता है क्योंकि वो आर्ग्यू करके बताते हैं कि अरे भैया जितने भी आपने कोशिश करे सब रॉन्ग है. मतलब इन्होंने डायरेक्ट चैलेंज दिए 15th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी के सारे फिलोसोफर को, सारे हिस्टोरियन को, ये कहते हुए कि आपकी सारी थीसीस रॉन्ग है, आप तो चले गए आपकी चीजें देखकर. बट कॉमन सेंस तो ये बोलता है जब तक हमने एक्सकावेशन करेंगे नहीं हमको कोई चीज फाउंड होगी नहीं. बट इनका एक और एक चीज फैक्ट ऐसा कहता है कि कितने आपने एक्सकावेशन किए कि आप रियल हिस्ट्री बता सकते हो. जैसे कि हड़प्पा की बात वापस मैं ले रही हूँ, सॉरी आई नो यू ऑल आर जस्ट दिस, बट हड़प्पा तो अभी मिला था, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि पहले तो हमने पढ़ लिए सारे लिटरेचर फर्स्ट सेंचुरी से बना लिए, लेकिन हड़प्पा तो हमको अभी मिला है, तो आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि हिस्ट्री बन गया है. स्टिल ही से इनका ऐसा सोचना था, इनका बोलना ऐसा है कि आर्कियोलॉजी बोलते सारा लॉजिकल रीजनिंग रखो आप अपने पॉकेट के अंदर, क्योंकि एक्सकैवेशन जब तक पूरी तरीके से नहीं होता है तब तक कुछ नहीं हो सकता है. बट एक्सकैवेशन, यस कोई कुछ पूछ रहा है मुझसे. So he said excavation is very important. Now and then you need to excavate and find out. So he said एक चीज पे मैं तो स्ट्रिक्ट नहीं रहने वाला हूँ, it is not right. इन्होंने ये बुक के अंदर बड़े गौर से और अच्छे डिबेट फॉर्म में ये बुक लिखी गई है और अच्छे वे में उन्होंने बताया कि एवरी नाउ एंड देन यू कांट से कि ये हिस्ट्री बन गई है बाय सेइंग कि अरे ये लगता है इतने साल पुराना है, चलो इसको हिस्ट्री के अंदर एड अप कर दो. इसे नो, हिस्ट्री है ही नहीं, क्योंकि अब तक किसी बंदे ने हिस्ट्री को ढूंढा ही नहीं, तो उनका वे ऐसा था. Foucault subject the so far unacknowledged areas by historians such as physics, psychological disorder, science of the medicine, prison administration, etc. to historical analysis. ये सब पे उन्हें डील किए, सारे हिस्टोरियन को मुंह तोड़ जवाब दिए हुए हैं, बताया है कि आप लोग ने जितना फाइंड आउट किया आप लोग ने उसका एविडेंस दिए, गुड. बट जैसे कि हम बोल रहे हैं कि वो 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो ये सब अलग हो रहा है. जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं मॉडर्न वे में, मैंने जैसे व्हाट्सएप का वे बताई थी, जब कॉलिंग नहीं था, मैसेजिंग नहीं था तो अलग था, अब घर बैठना कितना अलग पड़ रहा है. तो डील इज चेंज, बट एविडेंस ही दिखाकर सब प्रूव नहीं होता है. ही जस्ट गिव अ डेप्थ कि इतना करने से भी कुछ नहीं मिलेगा. आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन ट्रू और फॉल्स का रीजन किसी ने अभी तक बताया नहीं. तो बहुत ज्यादा इनकी स्माइल देख के आप समझ जाओगे, बहुत ज्यादा आर्ग्यू वाले थे, तो इनको कहीं ना कहीं तो अच्छे. ही वाज लाइक अ डाउटफुल क्वेश्चन ऑल द टाइम्स. Thus the scope of historical writing keep continuously expanding. लिटरेचर, ड्रामा, फिल्म्स, फिर हम लोग ने देखे बहुत सारे, फिर अगर हम लोग नॉर्मल देखे तो शेक्सपियर एंड ऑल, ये सब भी वेस्ट के साइड के हैं. फिर इन लोग ने इन सबको देखे आराम से और फिर डील करे एंड देन दे आल्सो स्टार्ट राइटिंग. फिर वेस्ट साइड में भी बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स आए थे जिसने उस टाइम के दौर की चीजें लिखी है, अपने वे में पढ़ाई है, अपने वे में जज की है,